Hello students, you know the topic under discussion is colligative properties. We studied that these are the properties of a solution which depend entirely on the number of solute particles and not on the nature of the solute particles. We studied two colligative properties so far: relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. Today we will study third colligative property, which is depression in freezing point. तो ये लेक्चर आज का काफी सिंपल होगा. Concepts involved in elevation in boiling point, they are when reversed we get depression in freezing point. So before we go to depression in freezing point, first of all let us understand what is freezing point. Let's have a small discussion on this. What is a freezing point? Freezing point is the temperature of a substance at which solid phase and liquid phase both exist in equilibrium with each other. I repeat, freezing point is the temperature at which solid phase of a substance and liquid phase of that substance both are in equilibrium with each other. And when both phases are, solid phase and liquid phase of a substance are in equilibrium with each other, then you know at equilibrium all the measurable properties become constant. And when solid phase and liquid phase of a substance are at equilibrium with each other, their vapor pressures will also be equal. So that temperature at which the solid phase and liquid phase of a substance exist in equilibrium with each other, and as a result of that the vapor pressure of the solid phase and liquid phase of that substance becomes equal. That temperature is called as freezing point. So now we can say that freezing point is the temperature at which solid phase and liquid phase of a substance exist in equilibrium with each other and they have same vapor pressure. तो अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर दूं, कंक्लूड कर दूं, तो it can be said that the temperature at which the vapor pressure of solid phase and liquid phase of a substance becomes equal, that temperature is called as freezing point. Now we have two cases. One is pure solvent and other one is solution of the same solvent containing non-volatile solute. स्टूडेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिवर्स करना है. मैं अब आपको यह समझाने जा रहा हूं, solution containing non-volatile solute
it has lower freezing point as compared to its pure solvent. Let us understand how. When we have solution containing non-volatile solute, it means that the solution will have low vapor pressure. Solution है and the solution contains some quantity of non-volatile solute. Due to the presence of non-volatile solute, vapor pressure of the solution will be less. और एक solution का lower vapor pressure lower temperature पे होता है. तो अब हमारे पास solution है. Since it has non-volatile solute, so it will have lower value of vapor pressure. What is the freezing point? Freezing point is the temperature at which vapor pressure of liquid phase and solid phase become equal. तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का पहले ही लो है वेपर प्रेशर, और सोल्यूशन का लो वेपर प्रेशर विल बी एट लोअर टेम्परेचर. तो जब हम इस सोल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो वो जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे सोल्यूशन के सॉलिड फेज का और सोल्यूशन के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर लोअर होगा. सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा. क्यों लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा? बिकॉज इट्स अ सोल्यूशन विच हैज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. बिकॉज ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, its vapor pressure will be lower, and lower vapor pressure occurs at lower temperature. Therefore, in order to freeze this solution, the temperature at which the vapor pressure of the solid phase of the solution becomes equal to vapor pressure of the liquid phase of the solution, that temperature will be a lower temperature because of the lower vapor pressure of the solution. As a result of that, solution containing non-volatile solute will have lower freezing point as compared to the freezing point of the pure solvent. क्यों? अगर आप pure solvent लें, pure solvent, it has high value of vapor pressure. High value of vapor pressure is available at a higher temperature. तो प्योर सॉल्वेंट को अगर फ्रीज करना है तो प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द सॉलिड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द लिक्विड फेज, वो इक्वल तो बनेंगे, लेकिन वो इक्वल बनेंगे एट अ हायर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हायर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. So from here we can conclude that freezing point of a pure solvent is higher than the freezing point of the solution containing non-volatile solute. This difference in the freezing point of solution containing non-volatile solute and its freezing point, this difference in the freezing point of the solution containing non-volatile solute and its pure solvent, this difference in freezing point is called as depression in freezing point. Depression in freezing point, in other words, means decrease in the value of the freezing point. Pure solvent, because of higher vapor pressure, will have higher value of freezing point. Solution
having non-volatile solute, because of lower vapor pressure, will have lower value of freezing point. इसका मीनिंग solution containing non-volatile solute, इसका freezing point कम होगा किससे? Than the freezing point of the pure solvent. तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू इट्स सॉल्यूशन. सो दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द freezing point when some non-volatile solute is added to the pure solvent. This decrease in the value of freezing point is called as depression in freezing point. So before we go to graphical part, I hope that you understood what is freezing point and what is depression in freezing point. तो कंक्लूजन क्या हुआ? रिवीजन है स्टूडेंट. टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट is always higher than the freezing point of its solution containing non-volatile solute. And this difference in the freezing point of the pure solvent and its solution is called as depression in freezing point, which is also called as, I will not say called as, this depression in freezing point is represented by the symbol delta TF. Student, delta TF यहां लिख रहा हूं मैं. This is delta TF and that will be the symbol of depression in freezing point. So let us understand all these things from the graph. तो स्टूडेंट यहां पे आपको देखना होगा ग्राफ पे सभी को. ग्राफ पे आई हैव ड्रॉन टू कर्व्ड लाइंस. तो स्टूडेंट यहां ये पहली कर्व्ड लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा. फ्रॉम ए आई बिगन एंड दिस इज द पॉइंट बी. दिस इज द कर्व ए बी इन द ग्राफ. This curve AB in the graph shows variations in the vapor pressure of the pure solvent. ये हमने pure solvent लिखा है. The curve AB shows variations in the vapor pressure of the pure solvent with the decrease in temperature. Graph is plotted between vapor pressure and temperature. So curve AB shows variations when you move from A to B in the curve, when you move from A to B in the graph, तो temperature decrease करेगा and with the decrease in temperature vapor pressure pure solvent का decrease करेगा. स्टूडेंट, तो A से B की तरफ चलते हैं. फ्रॉम हियर A से B की तरफ मूव कर रहे हैं. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है एंड वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. एट दिस पॉइंट बी पॉइंट द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बिगन्स. इस पॉइंट बी पे क्या होता है? सम ऑफ द प्योर सॉल्वेंट फ्रीज करना स्टार्ट कर जाता है एंड देयरफॉर एट दिस पॉइंट बी यू गेट both liquid phase of the pure solvent and solid phase of the pure solvent. Solid phase क्यों? क्योंकि at point B some of the pure solvent freeze कर जाता है, तो इसीलिए at point B you will get solid phase of the pure solvent. लेकिन at point B you will also get
लिक्विड फेज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी पे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट बी पे कुछ क्वांटिटी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट फ्रीज करेगा और फ्रोजन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, एट पॉइंट बी द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग अकर्स एंड देयरफॉर एट पॉइंट बी you find both solid form and liquid form of the pure solvent. And if you again focus at point B, solid form and liquid form of the pure solvent both have same value of vapor pressure. Very important point. At point B, pure solvent का freezing begins. At point B, you get both liquid and solid form of the pure solvent. At point B, the graph indicates the vapor pressure of the solid phase and the liquid phase of the pure solvent becomes equal. It means that at this point, the vapor pressure of the solid phase and liquid phase of the pure solvent becomes equal. So at point B, whatever temperature will you get, that will be the freezing point of the pure solvent. हम point B से सीधा perpendicular ड्रा करेंगे टेम्परेचर एक्सिस पे, एंड दैट परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस पे जहां पे भी टच करेगा, दैट विल बी द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the solid phase and liquid phase of the pure solvent becomes equal, and that will be the temperature, that will be the freezing point of the pure solvent. तो होप करता हूं स्टूडेंट आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा. So at point B, vapor pressure of the liquid phase and solid phase of the pure solvent becomes equal. So at point B, whatever temperature is there, that will be the freezing point of the pure solvent. एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने ग्राफ पे शो नहीं किया है लेकिन आप ध्यान देना, B to C आप देखेंगे, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द कर्व, यहां पे काफी ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और B to C आपको सॉल्वेंट ओनली फ्रोजन फॉर्म में मिलेगा. फ्रोजन फॉर्म मींस सॉलिड फेज में मिलेगा. आपको प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में सिर्फ A to B तक मिलेगा. B पे आपको प्योर सॉल्वेंट सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फेजेस मिलेगा. बट आफ्टर B, फ्रॉम B to C कर्व का वो पार्ट है जो इंडिकेट कर रहा है कि pure solvent is in the frozen form, that is in the solid form. So T naught F is the freezing point of the pure solvent, because at this temperature the vapor pressure of the pure solvent and the vapor pressure of the liquid phase and solid phase of the pure solvent becomes equal. So student, now let us come to the second curve which is drawn in the solution. This second curve, it indicates variations in the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute. First of all, why this curve? For variations in the vapor pressure of the solution is drawn below the curve for pure solvent. जो कर्व इंडिकेट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में वेरिएशंस, उससे हमने थोड़ा बिलो क्यों ड्रा किया है, दैट कर्व जो इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में वेरिएशंस. एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज सॉल्यूशन हैज लोअर वेपर प्रेशर एज कंपेयर्ड टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. इसीलिए द कर्व फॉर सॉल्यूशन ये हमने बिलो ड्रा किया है फॉर द कर्व विच इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट.
तो स्टूडेंट फिर से दिस कर्व डी टू ई, पहले यहां तक बात करेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है, यहां देखते हैं ना स्टूडेंट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा है, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसका स्टूडेंट ध्यान दीजिए वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता जा रहा है। कि एज द टेम्परेचर फॉल्स, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस। एट द पॉइंट ई, very important student, at the point E, what happens? Freezing of the solution begins. What does it mean? हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। एट पॉइंट E, अगर आप ग्राफ पे देखें तो क्या होगा? हमने कहा कि freezing begins. Freezing begins means some of the solution begins to change to the begins to freeze. At point E, some part of the solution begins to freeze, means at point E, solution का start हो जाता है freezing। तो स्टूडेंट D से लेके E तक आपको solution liquid form में मिलेगा, लेकिन exactly at the point E क्या हो रहा है? freezing अकर कर रही है। exactly at the point E क्या हो रहा है? सोल्यूशन सॉलिड फेज और सोल्यूशन लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। लगता नहीं आपने मेरी बात अंडरस्टैंड की। पॉइंट ई पे सोल्यूशन का स्टार्ट हुआ फ्रीजिंग, सो एट पॉइंट ई हमें सोल्यूशन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज दोनों में मिलेगा। क्यों? कंप्लीट सोल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ, और मैंने स्टूडेंट कहा कंप्लीट सोल्यूशन फ्रीज नहीं हुआ, इसीलिए एट दिस पॉइंट ई यू विल गेट सोल्यूशन इन द सॉलिड फेज एज वेल एज सोल्यूशन इन द liquid phase, and at this point E, when solution is in the solid phase, some part of the solution is in the liquid phase, but at this point E, the solid phase of the solution and liquid phase of the solution will have equal vapor pressure. So whatever temperature is there at point E, E पॉइंट पे सोल्यूशन के सॉलिड फेज और सोल्यूशन के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ है। सो E पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो E पॉइंट पे स्टूडेंट हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, और ये पॉइंट आपको टेम्परेचर मिलेगा ये E पॉइंट के ऊपर, एंड दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। So at point E, solid phase, liquid phase of the solution have same vapor pressure. So at point E, whatever temperature is there, that will be the freezing point of the solution. At point B, solid phase and liquid phase of the pure solvent both have same vapor pressure. Therefore, at B, जितना भी temperature होगा, that will be the freezing point of the pure solvent. तो ग्राफ क्लियर इंडिकेट करता है स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का T0F, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हायर है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का हायर है देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं यहां आपसे बात करता हूं स्टूडेंट फिर से T0F, this is the freezing point of the pure solvent, and graph indicates that it is greater than the freezing point of the solution containing non-volatile solute, and this difference in the freezing point of the pure solvent and its solution containing non-volatile solute is called as depression in freezing point। तो ग्राफ में आपने देखा होगा कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करते ही फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, एंड दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सिंपल कहें तो डिफरेंस freezing point of the pure solvent and freezing point of the solution
ऑफ द सेम सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द depression in freezing point, which is represented by the symbol delta TF. So this is the graphical part, and now we will come to the mathematical part. और बिल्कुल स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम चलेगा जैसे हमने कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टडी किया था। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट्स रीड फ्यू थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड। तो फोकस करिएगा सभी बोर्ड पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, अभी भी स्टडी किया, जल्दी रीड करूंगा मैं। इट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एट विच इट्स सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज दे हैव सेम वेपर प्रेशर। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन द freezing point of its solution containing non-volatile solute. This is the freezing point of the pure solvent and this is the freezing point of its solution containing non-volatile solute. तो आपको पता ही है freezing point pure solvent का higher होगा than the freezing point of its solution containing non-volatile solute. And the difference in the freezing point of the pure solvent and its solution containing non-volatile solute is called as depression in freezing point, which is represented by the symbol delta TF. तो स्टूडेंट ग्राफ पे मैं एक पॉइंट पर फिर से फोकस करना चाहता हूं, मुझे लगता है भूल जाएंगे। बी टू सी इज दैट पार्ट ऑफ द कर्व जो इंडिकेट कर रहा है वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में लिया है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डायग्राम पे और देखना होगा उसमें, ई टू सी। E to C is that part of the curve which shows variations in the vapor pressure of the solid solution. Solid solution, student फिर से डिफरेंस है थोड़ा। B to C solid pure solvent, E to C it is solid solution. So जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, तो यहां भी सेम खुद सोचिएगा, depression in freezing point is directly proportional to lowering in vapor pressure and lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute। तो बोर्ड पे देखिएगा, इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा स्टूडेंट, कल ही तो मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी elevation in boiling point। So depression in freezing point delta TF equals to T naught F freezing point of the pure solvent minus TF freezing point of the solution। But जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, delta TF elevation in depression in freezing point is directly proportional to delta P। delta P is lowering in vapor pressure, नहीं तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा, elevation in boiling point। So delta TF is directly proportional to lowering in vapor pressure. Delta P is lowering in vapor pressure, but delta P lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute. So if delta TF directly proportional to lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure directly proportional to mole fraction of the solute, so we can say that delta TF elevation in boiling point is directly proportional to XB मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और फिर स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट आ गया K, सो डेल्टा TF इक्वल टू K इनटू XB। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में क्या किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यहां डेल्टा TB था, डेल्टा TB इज इक्वल टू K इनटू XB। तो इस लेक्चर में हो गया हमारा डेल्टा TF इक्वल टू K इनटू XB। अब सारा आपको खुद करना चाहिए, ऑलमोस्ट डन है स्टूडेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या ड्राइव किए थे, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, M मीन्स मोलैरिटी। यहां क्या ड्राइव करेंगे, सेम थोड़ा सा चेंज करें, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF इक्वल्स टू, वहां KB था यहां KF और आगे इंटू मोलैरिटी, लेट्स सी। तो देखिएगा स्टूडेंट मैथमेटिकल पार्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट and this is known to you, it is equal to number of moles of solute divided by
total number of moles of solute and solvent in the solution. NB, number of moles of solute equals to mass of the solute, given mass of the solute, WB upon MB, molar mass of the solute. थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं अब आप ये. And NA, number of moles of solvent equals to WA, mass of the solvent upon MA, molar mass of the solvent. Again, ये सारी वैल्यूज जो हैं NB, NA का हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट XB equals to WB upon MB, फिर upon WA upon MA प्लस WB upon MB. खुद करना है स्टूडेंट. और आपको ये भी मालूम है these are the non-ideal solutions, and in these non-ideal solutions, sorry students, थोड़ा सा गलत हो गया. These are the ideal solutions, and these are the very very dilute solutions. These are such are low diluted solutions that in these solutions the quantity of solute, the masses of solute are very very less in comparison to the quantity of the solvent. हम कर चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए हमने यहां क्या लिखा देखिएगा. बट इन केस ऑफ dilute solutions, WB upon MB, these are the masses of the solute, are very very less in comparison to the quantity masses of the solvent. इसलिए हम पहले भी कर चुके हैं डिनोमिनेटर में. स्टूडेंट डिनोमिनेटर में मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटीज ऑफ द सॉल्वेंट. Therefore in the denominator WB upon MB can be neglected. पहले का कर चुके हैं. सो फिर इसको नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन स्टूडेंट मिल जाएगी. ये XB equal to WB upon MB into MA upon WA. What is this WB? Mass of the solute. What is MB? Molar mass of the solute. Mass of the solute divided by molar mass of the solute is equal to NB, number of moles of solute. एक ही बार हमने बियर करके आपको बताया था, अगर कुछ अंडरस्टैंड करना है तो WB अपॉन MB की जगह हमारे पास NB आ जाएगा. सो वी गेट XB इज इक्वल टू इसी NB अपॉन, स्टूडेंट देख लीजिएगा, इसकी जगह मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया NB, तो अपॉन एक और रीअरेंज कर दिया मैंने, ये हमारे पास आ गया MA अपॉन WA. ये मैंने यहां पे आया. फिर अगर आपको याद हो, लेट अस सपोज दिस WA इज द mass of the solvent and this mass of the solvent is in kg. तो देखिएगा स्टूडेंट, number of moles of solute upon mass of the solvent in kg, that is molarity, m, small m. So XB is equal to m. होप करता हूं आपको पता चला होगा. m molarity. कैसे आ गया molarity? number of moles of solute upon mass of the solvent, that is molarity. So इसकी जगह फिर आपको molarity लिखना होगा into MA, molar mass of the solvent. फिर स्टूडेंट ये जो आपको XB का वैल्यू मिला है, आपने इसको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. लिखा भी है मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. डेल्टा TF इक्वल्स टू K, डेल्टा TF इक्वल्स टू K. और अब आगे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है IB की, XB की. और XB का वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है? MA. ये हमारे पास आ गया MA. MA मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और स्मॉल m मोलैरिटी है. तो यहां से XB की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा, ये वाला. फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ K इंटू MA, प्रोडक्ट ऑफ ये K इंटू MA, दैट इज इक्वल टू KF. व्हाट इज KF? मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. आई रिपीट, KF मोलर cryoscopic constant. So this KF is molar cryoscopic constant, and this KF is equal to K, constant K multiply by MA. So यहाँ पे KMA की प्लेस पे अब हमारा KF आ जाएगा. तो फाइनली we get relation delta TF equals to KF into M. What is KF? It is molar cryoscopic constant. And now let us define what is KF. इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ KF, स्टूडेंट, व्हेन मोलैरिटी इज 1
मोलैलिटी वन होने का मीनिंग क्या है? मोलैलिटी यूनिटी है। मोलैलिटी यूनिटी होने का मीनिंग क्या है? मोलैलिटी वन होने का मीनिंग क्या है? देयर इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। सो व्हेन द सॉल्यूशन हैज अ मोलैलिटी ऑफ 1, तो हमारे पास स्मॉल m का वैल्यू, मोलैलिटी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप यहां 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? KF मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द, आई रिपीट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द depression in the freezing point, then the solution has molality of 1. So what is KF? It is the molar cryoscopic constant. What is KF, molar cryoscopic constant? It is the depression in the freezing point of a solution, then its value is, then the value of the solution is, when the value of molarity of a solution is 1. तो मजा नहीं आया, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करूंगा. What is KF? It is the depression in the freezing point of a solution when the molarity of a solution is 1. तो आइए स्टूडेंट अब यूनिट्स ऑफ KF करें. सी यूनिट्स ऑफ KB एंड KF आर सेम. खुद करने होंगे, मैं थोड़ा सा करके आगे बढ़ जाऊंगा. यूनिट्स ऑफ KF, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अभी अभी आपने स्टडी किया डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M. M को इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा KF इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन M. हमने यहां पे M को इक्वलिटी के उस तरफ लिया तो डेल्टा TF के अपॉन पे हमें M मिल गया. व्हाट इज M? पोलैरिटी. M equals to NB upon WA, and remember WA is the mass of the solute and we are taking this mass of the solute in kilogram. अगर ग्राम में लोगे तो फिर आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पिछले जो लेक्चर में पढ़ा स्टूडेंट आपने, तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास M equals to NB upon WA और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका वैल्यू मैं होप करता हूं आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स. जब ये सारी वैल्यूज बच्चे आप ऊपर वाली रिलेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे. अगर मैंने डायरेक्ट किया आपने खुद करना है, मैंने डायरेक्ट किया है खुद करना है, मैंने कल ही आपको करवाया था. ठीक है, KF का यूनिट बनना है आपने, सॉरी KF का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है. डेल्टा TF का यूनिट आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि ये टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन होगा. ये हमारे पास मोलैरिटी है स्टूडेंट और मोलैरिटी का वैल्यू मैंने आपको दे दिया है NB अपॉन WA. तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M. यहां पे M का वैल्यू भरेंगे NB अपॉन WA. सभी टर्म्स के आप भरेंगे वहां पे यूनिट्स और फाइनली आपको KF के वही यूनिट्स मिलेंगे जो यूनिट्स आपको KB के मिले थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एंड दैट इज केल्विन kg पर मोल. केल्विन kg पर मोल. तो स्टूडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का लास्ट पार्ट, यू नो दैट these are the colligative properties, and in the very beginning we understood that colligative properties can be used to find out the molar mass MB, molar mass of the solute. Now let us understand how depression in freezing point can be taken, can be used to determine the molar mass of the solute. Very simple, किया हुआ है. We know that अभी अभी किया डेल्टा TF equals to KF into M. Let's say this is relation number 1. But molarity ये भी अभी अभी किया equals to number of moles of solute NB upon mass of the solvent in kg. But NB का वैल्यू भी आपको मालूम है. number of moles of solute means molar, number of moles of solute means mass of the solute divided by molar mass of the solute, WB upon MB. और ये जो NB का वैल्यू है NB इक्वल टू WB अपॉन MB, इस वैल्यू को हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. NB की वैल्यू को हम यहां इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें M का मोलैरिटी का ये वैल्यू मिल जाएगा. मोलैरिटी M इक्वल्स टू
एन बी का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां से एन बी का वैल्यू देखेंगे, ये एन बी का वैल्यू, और इस एन बी की वैल्यू को इस मोलैरिटी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट दिस। फिर ये जो m का वैल्यू है, मोलैरिटी का वैल्यू है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट, ये जो आपको इस रिलेशन में मोलैरिटी का वैल्यू मिल रहा है, इस मोलैरिटी की वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। लिखा है हमने पुट द वैल्यू ऑफ m मोलैरिटी इन इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास m का वैल्यू। तो जब इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट डेल्टा TF इक्वल टू KF, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू क्या है, इनटू m। तो m का ये वैल्यू है स्टूडेंट, ये पूरा वैल्यू स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये m का वैल्यू है पूरा का पूरा यहां पे। ये जो मैं आपको कह रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी वगैरह, ये हमने यहां इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें ये मिल गया। बस स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हमें मोलर मास चाहिए सॉल्यूट का mb, तो mb को इक्वालिटी के उस तरफ ले आएंगे और डेल्टा TF को वहां पे ले आएंगे। तो mb वहां जाके डेल्टा TF की प्लेस पे आएगा और डेल्टा TF इक्वालिटी के उस तरफ जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा mb इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा स्टूडेंट, ये जो बड़े दिन से कर रहे हैं बार बार, ये आपको आना चाहिए, mb है दैट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर आपको सभी की वैल्यूज नोन हो, इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, यहां गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और यहां मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। और अगर आपको सॉल्वेंट का मास अगर आप ग्राम में लेंगे, फिर आपको पूरी रिलेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और बिफोर दी अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स आपको सारी रिलेशन, सारे फार्मूले याद रखने होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था, लेकिन याद रखना हर एक टॉपिक में हम यहां पे स्टडी करते हैं कि वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के टॉपिक में। तो इतना याद रखिए, एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी से दैट इट्स अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या इस पूरे टॉपिक पे कहीं पे प्रूफ होता है इट्स अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? कुछ प्लेसेस पे प्रूफ होता है, जैसे यहां पे नंबर 1 ये हमारे पास स्टूडेंट डेल्टा TF है, डेल्टा TF दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि यस इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो होप करता हूं लेसन को रिपीटेडली देखेंगे तो आपको छोटे से छोटा डाउट जो टॉपिक में होगा वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। नोट करना है, नोटबुक्स लगानी है, ग्राफ बनाना है, और मैं आपको बार बार कहता हूं बी सिंसियर इन योर स्टडीज। जो डेली लेक्चर देखेंगे, रिपीटेडली देखेंगे, फिर उस पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर उसको स्टडी करेंगे, सब कुछ अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, अपना ब्रेन खुद अप्लाई करेंगे, दे विल बी सक्सेसफुल। सो अगला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी सम न्यूमेरिकल्स। सो बिफोर आई लीव, you know, camera will be there focused at the board just for few seconds, ताकि आप वहां बोर्ड पे जो भी लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और सब कुछ नोट कर सकें। थैंक यू।